Hello students, there are some more good questions on application of derivatives. This is the first question. A function is defined from 0 to 5 to real number and is such that f double dash x equal to f double dash 5 minus x for all x in 0 to 5. F dash 0 is 1, f dash 5 is 7. Then we have to find the value of this integral from 1 to 4. See, वैसे तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहा है, कितना f4 माइनस f1 आ जाएगा, लेकिन मुझे f4 f1 की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है. सो कुछ और मुझे सोचना होगा. फ्रॉम हियर आई कैन ड्रॉ द रिजल्ट that f given है fx equal to f double dash x equal to f double dash 5 minus x. Now if I integrate both the sides, I will get f dash x is equal to minus f dash 5 minus x plus an integral constant c. That means f dash x plus f dash 5 minus x is equal to constant c. F dash 0 and f dash 5 both are given here. So put x equal to 0. I will get f dash 0 plus f dash 5, that is c, and this is nothing but 7 plus 1, 8. So f dash 0, f dash x from here, f dash x plus f dash 5 minus x is going to be 8. Now, from here, I can use it like 1 to 4 f dash x dx. Keeping this in mind, I can use the property 1 to 4 f dash 5 minus x dx. This is equation 2. Adding equation 1 and 2, I will get twice I is equal to 1 to 4 f dash x plus f dash 5 minus x, that is nothing but 8, and this is 8 into 4 minus 1, that is 24. So I comes to be 12. So the answer of this question is D. Here f is the cubic function, cubic polynomial defined on for all real numbers which increasing in the interval minus infinity to 0 and 1 to infinity. Means here derivative is positive, here derivative is positive, decreases in this interval, derivative is negative. So derivative has two roots, 0 and 1. So I can assume f dash x to be ax x minus 1. Now it is given f dash 2 is 6. So 6 is equal to a into 2. That means a is equal to 3. So f dash x comes to be 3x square minus 3x. Now integrate once more to get function, because we have to evaluate f1, f3 by 2 and f0. So I need fx. So integrating it, I will get x cubed minus 3 by 2 x square plus c. Once again the value is given, f2 is 2. So 2 is equal to 8 minus 6 plus c, putting x equal to 2. So this gives c to be 0. So I got fx to be x cubed minus 3 by 2 x square. Now I can get f1
f1 is nothing but 1 minus 3 by 2, that is minus half, f3 by 2, that is 3 by 2 cube minus 3 by 2 cube, in fact 0, and f0 is 0. So this expression is equivalent to tan inverse minus 1 by 2 plus 0 plus 0, that is minus tan inverse half, and that is minus cot inverse 2. So the answer is D. Fx equal to x cube minus 3x plus 1. The minimum number of real roots of f of fx is actually this type of questions I have already discussed in previous videos. यहाँ पर मुझे f of fx के सॉल्यूशन बताने हैं। मान लो कि fx t है, तो ft इक्वल टू 0 को पहले सोल्व करें। ft है हमारा t क्यूब माइनस 3t प्लस 1, f डैश t 3t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यू आती है 1 एंड माइनस 1। माइनस 1 एंड 1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव करूं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो ये मैक्सिमा और ये मिनिमा। अगर मैं अब fx का ग्राफ ड्रॉ करूं तो -1 पर मैक्सिमा और 1 पर मिनिमा, और -1 अगर मैं यहाँ पर पुट करके देखूं तो -1 पर वैल्यू आ रही है 3, सपोज दिस, और -1 पर वैल्यू आ रही है -1, सपोज दिस। सो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, और यहाँ के बाद फिर टर्न होगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, -∞ से प्लस ∞ इसकी रेंज होती है। सो ये देखने के लिए कि ये 2 के इस तरफ है या ये रूट किधर है, ये पता करने के लिए हम इसमें 2 रख देंगे। अगर मैं इसमें 2 रखूं तो मुझे मिल रहा है पॉजिटिव, तो मतलब ये रूट जो है 1 और 2 के बीच में है, और ये रूट तो मुझे पता है 0 और 1 के बीच में है। और यहाँ पर ये रूट पता करने के लिए कि -2 किस तरफ है या -2 -1 के बीच में है, तो मैं इसमें -2 रखूंगा, और -2 रखने पर मुझे मिल रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब -2 यहाँ पर है। तो एक रूट मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये हमारा गामा है। तो ये क्लियर हो गया कि जो अल्फा की वैल्यू है वो -2 से -1 के बीच में है, और बीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और गामा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। नाउ अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा, इस क्यूबिक को मैं सोल्व करूंगा जब इसको, तो मुझे t की 3 वैल्यू मिलने वाली है, और t की पहली वैल्यू होगी सपोज अल्फा, तो यहाँ से मुझे कितने x मिलेंगे, ये आपका हो गया x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो fx इज इक्वल टू y इक्वल टू fx और y इक्वल टू अल्फा, इनके जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने रूट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, ये हमारे सामने ही fx का ग्राफ है, और y इक्वल टू अल्फा मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अल्फा की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, तो ग्राफ कहीं यहाँ पर आएगा। ये वैल्यू भी मुझे हम x इक्वल टू 1 रख करके यहाँ पर देख सकते, पता था मुझे -1 है ये, तो -1 से -2 के बीच में अगर अल्फा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आएगी, तो ये ग्राफ यहाँ काटेगा, तो 1 सॉल्यूशन मिलेगा मुझे यहाँ पर 1 सॉल्यूशन। अब t की दूसरी वैल्यू जो आएगी t इक्वल टू बीटा, यहाँ से देख लेते हैं x क्यूब माइनस 3x प्लस 1
का ग्राफ और बीटा y इक्वल टू बीटा का ग्राफ, बीटा कितना है, बीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का ग्राफ तो ये बना ही है। y इक्वल टू बीटा और बना लेते हैं, y इक्वल टू बीटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो 0 से 1 के बीच में कुछ होगी, तो 0 से 1 के बीच में ये आपका यहाँ पर 1 है, तो कैसे बनेगी, 1 रूट 2 और 3 सॉल्यूशंस मुझे यहाँ पर मिले। और अगर मैं t इक्वल टू गामा करूंगा, जिसका मतलब होगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू गामा, गामा मतलब y इक्वल टू गामा का ग्राफ और y इक्वल टू जिसका ग्राफ कितनी जगह काटेगा, जबकि गामा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ये आपका 3 है, तो 1 से 2 के बीच में यहाँ कहीं बनेगा, तो ये 3 रूट यहाँ से मुझे मिलेंगे, 3 रूट यहाँ से मिल जाएंगे और 3 यहाँ से, 6 और 7, डी आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है अपर इंटरवल a से b में। मान लीजिए एफ ए बाई ए इज इक्वल टू एफ बी बाई बी, तो किसी रूट की बात कर रहा है, एक्स नॉट ए और बी के बीच में कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ मैं, एफ एक्स बाई एक्स, और क्लियरली एच ए इज इक्वल टू एच बी है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर सम एक्स नॉट एच डैश एक्स नॉट इज 0। अब एच डैश एक्स नॉट हुआ, यहाँ से डेरिवेटिव करके देख लीजिए, एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, दिस इज 0 फॉर सम एक्स नॉट, so f dash x naught into x naught is equal to fx naught, so answer A is correct. हाँ, this one fx is this function, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर अचीव करना है, तो ये 4 बार डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हाँ है। और इसमें हम कैसे करें, ये देखिए, ये एक ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो ये ऑड हुआ, ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो ये सारा ऑड हुआ। दो ऑड फंक्शन का डिफरेंस ऑड ही फंक्शन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इवन हो जाएगा, इवन फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव ऑड फंक्शन, थर्ड डेरिवेटिव इवन फंक्शन, फोर्थ डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन ओरिजिन से पास होता है कंटीन्यूअस फंक्शन, तो x इक्वल टू 0 पर फोर्थ डेरिवेटिव 0 होगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। If the curves y equal to e raised to power x upon a and y equal to ln ax has only one point in common, then the value of the test integer a. Guys, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, e raised to power x upon a and ln ax are inverse of each other, तो जहां भी इनका मिलना होगा वो y इक्वल टू एक्स पर ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक ही सॉल्यूशन है तो e की पावर x अपॉन a एंड y इक्वल टू x मस्ट टच, तो y इक्वल टू x और e की पावर x टच करेंगे, करना चाहिए, ऐसा a होना चाहिए, तो एक सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट जहां पर टच हो रहा है ये x1 है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इसका 1 हो जाना चाहिए, जो कि e की पावर x अपॉन x1 अपॉन a, ये 1 है, और x1 पर दोनों की वैल्यू भी बराबर हो जानी चाहिए, यानी e की पावर x1 बाई a, इस फंक्शन की वैल्यू x1 के बराबर होनी चाहिए। तो 1 और 2 से क्लियर है कि x1 की वैल्यू 1 है। अगर x1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ से या किसी भी इक्वेशन से a की वैल्यू पता चल गई e। अगर a e है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आंसर इज B। नाउ दिस क्वेश्चन,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x+1 and gx equal to x square minus 2ax+4. A is some parameter. For all x1 in 0 to 1, there exists some x2 in 1 to 2 closed such that f of x1 is greater than equal to g of x2. Then minimum value of a क्या होगी? देखिए मैं क्या करता हूं कि यहां मुझे एक इनइक्वेशन गिवन है g of x2. ये सारे x1 0 से 1 में सारे x1 के लिए सेटिस्फाई होनी है. तो अगर मुझे 0 से 1 में सारे x1 के लिए सेटिस्फाई करना है, इसको a ढूंढना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ x1 की, और फिर a ढूंढता हूँ. तो जो a उस इस स्टेटमेंट के लिए आएगा, इस इनइक्वालिटी के लिए आएगा, वो fx1 की उस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू के लिए ही ट्रू. तो मैं क्या करता हूँ कि fx1 की वैल्यू मिनिमम ढूंढता हूँ. fx कितना है, f डैश x कितना है, 1 प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, एक पॉजिटिव अमाउंट. इसका मतलब fx हुआ इंक्रीजिंग. तो f मिनिमम क्या हो जाएगा, f मिनिमम हो जाएगा 0 पर मिलेगा मुझे मिनिमम. तो यहाँ 0 रख दीजिए x को. तो ये हो गया -1. तो अगर मैं g of x2 लेस देन इक्वल टू -1 के लिए a ढूंढूंगा, तो बाकी fx1 की वैल्यूज के लिए भी वो a सच होगा, क्योंकि मैंने तो मिनिमम का कंडीशन a की कंडीशन निकाली है. तो ये होना है फॉर सम x2 1 से 2 में कुछ x2 के लिए ऐसा होना है. अब हमारा gx2 क्या है, रख देता हूँ. ये हमारा है x² माइनस 2ax+4 लेस देन इक्वल टू -1 फॉर सम x इन 1 से 2. ये आपका हो गया x² माइनस 2ax+5 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर सम x इन 1 से 2. अब देखिए, कुछ x के लिए इस क्वाड्रेटिक को नेगेटिव होना है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं. नेगेटिव होना है मतलब ओपनिंग प्रोडक्ट में कुछ हिस्सा x एक्सिस के नीचे आना है 1 से 2 में. 1 से 2 में ऐसे हो सकता है, और 1 से 2 में कुछ x के लिए नेगेटिव रखना है तो ऐसे भी हो सकता है. 1 से 2 में ऐसे भी हो सकता है, और 1 से 2 में ऐसे भी हो सकता है. और भी कुछ केस बन रहे हैं क्या? नहीं, बस इनके लिए आपको कुछ एक्स के लिए नेगेटिव दिखाना है 1 से 2 में, तो यही केस बनते हैं. लेकिन एक बात ध्यान रखने की, इनमें से मैं कुछ केस एलिमिनेट कर सकता हूँ अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पर ध्यान दूं. इस क्वाड्रेटिक में जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो 5 है. इसका मतलब ये केस तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 1 के बीच में कोई नंबर और 1 से छोटा कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर 5 तो नहीं आएगा. 1 से 2 के बीच में कोई नंबर और 2 से बड़ा कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर 5 आ सकता है, तो ये केस ओके है. दोनों 1 से 2 के बीच में नंबर हो और प्रोडक्ट 5 आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है. एक नंबर 1 से कम हो और एक 2 से बड़ा हो, उसका प्रोडक्ट 5. तो ये दो केसेस हैं. इन दो केसेस में मुझे करना है. इसमें मैं क्या कहूँगा, एफ एक्स हमारा था x² माइनस 3ax+5, यही था ना, 2ax+5. तो इस वाले केस में मैं a ढूंढता हूँ. क्या बोलूंगा, f(1) पॉजिटिव मतलब f(1) पॉजिटिव मतलब 6 माइनस 2a पॉजिटिव मतलब a लेस देन 3, एंड f(2) नेगेटिव मतलब 4 माइनस 4a+5 नेगेटिव मतलब a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 9/4 से.
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 9/4 से ए की वैल्यू 3 तक हो। चलिए अब यहाँ देखता हूँ, इस केस में क्या होगा, f(1) पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो मतलब f(1) नेगेटिव मतलब ए की वैल्यू 3 से बड़ी, यहीं से देख लेंगे ना, उसका रिवर्स हो जाएगा। और f(2) भी पॉजिटिव, f(2) भी नेगेटिव। तो f(2) भी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यही हुआ, ए की वैल्यू 9/4 से बड़ी। इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 से बड़ी। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 9/4 से ए की वैल्यू इनफिनिटी तक। तो मिनिमम ए की वैल्यू है 9/4, और 9/4, हाँ तो यही आंसर 9/4। यहाँ सब जगह इक्वलिटी लगी है, तो यहाँ पर मैं इक्वलिटी ले सकता हूँ, 9/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, f(x) = e⁻⁻1/x² प्लस 0 से πx/2 √(1 + sin t) for all x in 0 to infinity। तब ये f'(x) एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, f'(x) एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो f'(x) निकाले तो क्या आएगा, f'(x) आएगा e⁻⁻1/x² इंटू 2/x³ प्लस, यहाँ लिबनिज़ रूल लग जाएगा, √(1 + sin πx/2 और πx/2 का π/2। अब ये तो 0 से इनफिनिटी x के लिए इसे कोई दिक्कत नहीं है, वेल डिफाइंड फंक्शन है, और इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f'(x) एग्जिस्ट भी करता है, और कोई भी चेन पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा जहाँ पर ये एग्जिस्ट ना करता हो। तो x की सारी वैल्यूज के लिए 0 से इनफिनिटी में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा ए तो करेक्ट है। f'(x) सारे x के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर मैं f'(x) निकालूंगा तो ये तो कुछ कुछ आएगा, मैं लिख देता हूँ, f'(x) = समथिंग समथिंग प्लस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा समथिंग अपॉन √(1 + sin πx/2। मैं इसकी बात नहीं करता, ये सपोज कर मान के चलो कि ये एग्जिस्ट करता भी होगा, तो लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता सारे x के लिए, ये वाला। क्यों, जब जब sin πx/2 -1 हुआ करेगा, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहीं से आराम से मुझे पता चल रहा है, सेकंड वाले पार्ट से ही, मैं क्यों इसमें डेरिवेटिव करूं, क्यों इसका डेरिवेटिव करूं, फिर उसको देखूं। अगर मुझे ये डिसाइड करना है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होता तब तो मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करता। मुझे बड़े आराम से पता चल जा रहा है कि ऑप्शन भी नहीं है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। f'(x) बाउंडेड है क्या, f'(x) बाउंडेड है क्या, देखिए ये तो मुझे पता है कि ये वैल्यू बाउंडेड है। अगर ये भी बाउंडेड हुआ तो ये सारा दोनों मतलब बाउंडेड हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू भी एक फाइनाइट नंबर से ज्यादा नहीं हुई और एक फाइनाइट नंबर से कम नहीं हुई, तो ये बाउंडेड हो जाएगा। ये तो बाउंडेड है, सबको पता है, sin πx/2 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसको, e⁻−1/x² अपॉन x³। जरा देखिए, अगर मैं x को इन्फिनिटी को अप्रोच करा दूं तो न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर इनफिनिटी। तो ये पूरा फंक्शन, मैं इसको g बुलाता हूँ, gx। तो gx जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं -∞ को टेंड कराऊं तो भी कुछ वैसा ही होने वाला है।
अगर x को माइनस इन्फिनिटी को टेंड करा दूं तो भी जी एक्स जो है वो 0 को टेंड करने वाला है। हाँ, अगर मैं x को 0 टेंड कराऊं तो जरा देखिए क्या होगा। x को जी एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंड करा रहा है तो ये किसको टेंड कर रहा है? 0 को। हाँ, ये तो फाइनाइट हो गया 1 और अपॉन इन्फिनिटी, हाँ 0 को टेंड कर रहा है। और अगर x 0 को टेंड करे तो ये क्वांटिटी किसको टेंड कर रही है? 0 को। और ये क्वांटिटी किसको टेंड कर रही है? 0 को। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो कैसे करूंगा मैं इसको? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन x³ e की पावर 1/x²। अब ये है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसमें हम क्या कर लें कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म इसको कर लेते हैं। तो इसमें मैं कर लेता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x² अपॉन 1/x³। डिनोमिनेटर को चेक कर रहा हूँ मैं, केवल डिनोमिनेटर को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x² इंटू 2/x³ और ये नीचे हो जाएगा -2/x³ और यहाँ पर -3/x⁴। तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3/x⁴। तो यहाँ पे केवल बचा x और ये हो जाएगा आपका लिमिट 2/3 x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x² अपॉन 1/x। ये फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। एक बार फिर लगा दीजिए एलएच रूल, x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/x² माइनस 2/x³ अपॉन -1/x²। अब ये हो गया 2/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये e की पावर 1/x² हो जाएगा और e की पावर 1/x² अपॉन x। सो ये है आपका। अब ये किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी और वेरी स्मॉल। तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। क्या ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है 0 के पास। तो 0 के पास 0 प्लस पे ना। एक बार फिर से चेक करते हैं, ये नहीं करना चाहिए था। 0 के पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2e की पावर -1/x² अपॉन x³। अब मैं इसको t रख रहा हूँ। लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये 2e की पावर -t² अपॉन t³ इंटू t³। तो ये आपका है इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। तो ये आपका लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कुछ मिस्टेक की होगी हमने वहाँ पे, 2t³ अपॉन e की पावर t²। तो ये तो क्लियर है। लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6t² अपॉन 2t e की पावर t²। तो ये आपका एक कैंसिल हो गया। फिर ये लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन 2t e की पावर t²। अब अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करता है तो ये 0 को टेंड कर गया। हाँ, तो ये 0 को टेंड कर रहा है दोस्त, ये कुछ गलती कर दी यहाँ पे। तो ये 0 को टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंडेड तो होगा।
बीच में फ्लक्चुएट करके इन्फिनिटी तक कहीं ना पहुंच जाए, तो इसका डेरिवेटिव एक बार चेक कर लेना, डेरिवेटिव 0 है कहीं मैक्स हो। अच्छा कंटिन्यूस है यार ये तो, इन्फिनिटी तक क्यों जाएगा। तो ये है बाउंडेड, इसका मतलब एफ डैश एक्स हुआ हमारा बाउंडेड। तो एफ डैश एक्स तो बाउंडेड हो गया, एफ एक्स के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता करना पड़ेगा। एफ एक्स ये बाउंडेड है क्या, देखो ये है एरिया, ये तो एरिया है, एरिया है 1 प्लस साइन पॉजिटिव ग्राफ, पॉजिटिव उसका फंक्शन का, और पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक है, मान लीजिए ऐसा एरिया, ऐसे एरिया इनफाइनाइट तक ऐड होंगे तो ये क्वांटिटी फाइनाइट तो नहीं रहेगी। तो एफ एक्स तो बाउंडेड नहीं है। अगर एफ एक्स बाउंडेड नहीं है और एफ डैश एक्स बाउंडेड है, तो कहीं ना कहीं एफ एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स को क्रॉस कर ही जाएगी कभी ना कभी। तो ये भी करेक्ट है, इस तरह से करेंगे। ये जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, polynomial function fx with non-negative coefficient satisfy the equation f of fx is equal to x is equal to x ft dt f0 is 0। ठीक है। अच्छा fx पोलिनोमियल है और नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। कितने डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है, इसको पता करने के लिए मैं, मान लो n डिग्री का पोलिनोमियल है, अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो एफ ऑफ एफ एक्स कितने डिग्री का होगा। अगर एफ एक्स n डिग्री का है तो एफ ऑफ एफ एक्स कितने डिग्री का होगा, एफ ऑफ एफ एक्स होगा n स्क्वायर डिग्री का। अच्छा अगर एफ एक्स n डिग्री का है तो इंटीग्रल एक ज्यादा का हो जाएगा n+1 का, और एक x मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो डिग्री है वो कितनी है, n+2। तो ये n स्क्वायर n+2 बराबर होना चाहिए, डिग्री तो सेम होनी चाहिए दोनों साइड में, n+2। यहाँ से सोल्व करके n की वैल्यू -1 रिजेक्ट कर देंगे, n की वैल्यू 2। हाँ एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है बस, अगर एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है, f0 0 है, तो मैं बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, कॉन्स्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, f0 0 है तो। अब जरा फिर से आ जाइए यहाँ पर, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हुआ। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए x इंटू इसका इंटीग्रल कितना, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। अब जरा देखिए, तो यहाँ पर 4 डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, 4 डिग्री का कोफिशिएंट है ए क्यूब, और यहाँ पर क्या है 4 डिग्री का a/3। अब यहाँ से a की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, 2 डिग्री का पोलिनोमियल होना जरूरी है, n की वैल्यू 2 होना। तो a 0 तो नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू 1/√3 और -1/√3 नॉन नेगेटिव उसने बोला है, तो मैंने ये ले लिया। अब जरा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, एक्स क्यूब कैसे बनेगा, यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई हो गई है 2ab ना, तो 2a स्क्वायर बी यहाँ से बनेगा, और इधर कितना बनेगा, इधर बनेगा जब ये मल्टीप्लाई होगा b/2, तो यहाँ से b इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब एफ एक्स हमारा सिर्फ कितना है, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर बाई √3, केवल ये एफ एक्स है। अब अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई √3 है, तो ये तो इवन फंक्शन है, ऐसा ऐसे है, ये अगर एफ एक्स है तो एफ मोड एक्स भी वैसा ही होगा, और मोड एफ ऑफ मोड एक्स भी बिल्कुल यही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ग्राफ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से देख लो। तो ये तो कहीं नॉन डिफरेंशिएबल है नहीं, तो नॉन डेरिवेबल 0 पॉइंट पर है, ए करेक्ट हो गया। सिग्नम ऑफ एफ एक्स क्या है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू हमेशा 1 है 0 को छोड़ के, और 0 है एग्जैक्टली 0 पर। एक्स इक्वल टू 1 पर तो ये कंटिन्यूस है, तो ये तो गलत है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सब लोग कर लेंगे। कितना है ये, x इक्वल टू √3 पर, तो √3 पर ये क्या है,
ये है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा, या डायरेक्टली कर लो, चलो कितना हो गया, ये हो गया x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब अगर x की वैल्यू √3 के आसपास की बात हो रही है तो √3 पर ये कितना होगा, √3 अगर ये है तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा π/3 और ये हो जाएगा 2π/3, 2 थीटा 2π/3 हो जाएगा। तो 2π/3 में साइन इनवर्स ऑफ साइन x कैसे ओपन होता है, ये आपका π/2 है और ये आपका 3π/2 है। तो 2π/3 में होगा π-x, ये π-x अगर आप है तो π- यानी कि π-2 थीटा मतलब π-2 tan इनवर्स x। तो ये π-2 tan इनवर्स x है एक्चुअली, 2 tan इनवर्स x। अब इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, ये z है, dz/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy/dx क्या होगा, ये आपका y है, dy/dx क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2x/√3। तो बच्चों मुझे चाहिए dy/dz, है ना, तो dy/dx अपॉन dz/dx ये हो जाएगा आपका dy/dx कितना 2x/√3 और dz/dx क्या था हमारा -2 और अपॉन, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू √3 रखिए, इसमें x इक्वल टू √3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 3 यानी -4। तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, fx की वैल्यू रखो यहाँ पर, क्या आ जाएगा √3x² अपॉन x की पावर x। अब ये x की पावर x रह गया बस, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो सारे बच्चों को पता होगा कि ये 1 होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इक्वल टू x² + bx + c इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट्स हैं रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसके पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट्स हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मान लो कि रूट अल्फा और 1/अल्फा है और ये दोनों डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1/अल्फा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि fx के अगर ये रूट है तो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा है x - अल्फा x - 1/अल्फा। अब यहाँ डेरिवेटिव की बात कर रहा है तो f' कितना हुआ, ax - 1/अल्फा प्लस ax - अल्फा, कितना, a तो बाहर आ गया, ये हो गया 2x - 1/अल्फा प्लस अल्फा, और याद रहे कि अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। f'1 कितना हुआ, f'1 a f'1 की बात हो रही है तीनों में ना, तो a f'1 कितना हुआ, a² 2 - अल्फा प्लस 1/अल्फा। अब चूंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है, AMGM से मुझे पता है कि ये 2 से बड़ा है, इक्वल भी नहीं हो सकता 2 के, क्योंकि इक्वलिटी तब आती है जब दोनों बराबर नंबर हो जाए, AMGM में आपको पता होगा। तो ये 2 से बड़ा है तो ये निगेटिव क्वांटिटी है, तो AF'1 क्या है हमारा, निगेटिव है, तो ये सही ऑप्शन है। मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है तो A, C और D हो गया। अब ये fx इक्वल टू r से r, gx r से r, 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं सच दैट fx भी gx भी x माइनस g'(x) भी और ये भी सारे के सारे नॉन निगेटिव हैं। तो मुझे g1 g0 के बारे में ए और बी ऑप्शन को अगर देखें तो g1 g0, तो इस पर जरा गौर कीजिए, gx वाले पे x - g'(x) मुझे गिवन है पॉजिटिव,
तो g डैश x छोटा होगा x से। अगर मैं 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा काम हो जाता है। तो 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो, 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो तो ये g1 माइनस g0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 से कम। तो g1 माइनस g0 किसी नंबर से कम तो है, पर वो नंबर 5 से छोटा है, तो ये तो नहीं है, ये है करेक्ट आपको। अब जरा f0 f1 में कुछ ढूंढना है, तो उसके लिए इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि इस तरह का जो होता है वो e की पावर x, तो एक hx मान लीजिए, fx e की पावर gx जिसका डेरिवेटिव ये आएगा, इस तरह से होगा। तो अब देखिए, अगर मैं h डैश x की बात करूं तो h डैश x आता है f डैश x प्लस fx g डैश x इंटू e की पावर gx। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसका मतलब hx क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर hx इंक्रीजिंग है तो h1 h0 से ज्यादा रहा होगा, तो h1 h0 से ज्यादा रहा होगा तो f1 e की पावर g ऑफ 1 बड़ा होगा f0 e की पावर g ऑफ 0 से। अब मुझे f0 अपॉन f1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो f0 बाई f1 ये होगा छोटा किससे, e की पावर g ऑफ 1 माइनस g ऑफ 0 से। अब मैं यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो रख ही सकता हूँ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी मैंने कितनी, हाफ। तो f0 अपॉन f1 जो है वो e की पावर 1/2 से छोटा ही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √e। ये आंसर करेक्ट होगा। Px and Qx are two different polynomials with real coefficients satisfying the following conditions. A and B are the roots of Px and Qx। चलो मैं लिख लेता हूँ। उसने कहा है कि Pa 0 है और ये भी कहा है QB 0 है, और तीसरी बात कही है कि PB इंटू QA पॉजिटिव है। अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है PC माइनस QC। तो एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ hx इज इक्वल टू Px माइनस QX। अब जरा देखिए कि h a कैसा है, h a ये है PA माइनस QA, यानी कि PA हमारा है 0, तो ये माइनस QA हो गया। और HB कैसा है, HB है PB माइनस QB, QB है 0, तो ये PB के बराबर हो गया। HA इंटू HB, HA इंटू HB कैसा है, माइनस QA PB। QA PB की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हुआ। इसका मतलब HX का एक रूट A और B के बीच में है, मान लो वो C है, तो HX का एक रूट मतलब इसका, दिस इज 0 फॉर सम C, तो आंसर A करेक्ट हुआ। ऐसे ही एक फंक्शन आप HX मान लो Px माइनस 2QX, C को ध्यान में रखते हुए, C ऑप्शन को, यहाँ से भी बिल्कुल सिमिलर वे में आपको पता चलेगा कि HA इंटू HB निगेटिव है, तो इसका भी एक रूट होगा, कोई C रूट होगा A और B के बीच में, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, fx इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स रेस्ट टू पावर एक्स और gx इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 1। अगर मुझे पता करना है कि इनमें से कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑप्शन में, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ABCD चारों ऑप्शन में देखिए मुझे f डैश x और g डैश x इनका पता करना होगा। तो f डैश x क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पता कर लेते हैं। ये हमारा है fx कितना 1 प्लस 1 बाई एक्स रेस्ट टू पावर x, और ये हो गया log fx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करने के लिए कर रहा हूँ, x log 1 प्लस 1 बाई एक्स
तो ये एफ डैश एक्स जो है वो हो गया एफ एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशियल log 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स इंटू 1/1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये आपका आ जाएगा एफ एक्स इंटू log 1 प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के आ जाएगा -1/x प्लस 1। हाँ, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका पता करना है कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको px मान लेता हूँ। px इज log 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1/x प्लस 1। p डैश x कैसा है, p डैश x कैसा है, अगर x हाँ p डैश x क्या है, p डैश x है आपका 1/1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये है +1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जरा देखिए यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर x कैंसिल होकर के -1/x इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर पॉजिटिव x के लिए x प्लस 1 बाहर ले लूँ तो क्या आएगा 1/x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स, और ये 1 बाई एक्स प्लस 1, और ये आपका x माइनस एक्स माइनस -1/x इंटू एक्स प्लस 1। पॉजिटिव x के लिए ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब px हमारा डिक्रीजिंग है। और अगर मैं x इन्फिनिटी को टेंड कराऊं, x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो px हमारा यानी ये फंक्शन हमारा किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। अगर इन्फिनिटी पे 0 को टेंड कर रहा है और डिक्रीजिंग है, यहाँ कहीं दूर 0 को टेंड कर रहा है और डिक्रीजिंग है, x से घटाने पर बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कौन, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये फंक्शन पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब जरा जी डैश एक्स के बारे में पता कर लेते हैं। जी डैश एक्स क्या है, जी एक्स हमारा यहाँ कर लेता हूँ, जी डैश एक्स log जी कितना हुआ, ये हुआ x प्लस 1 log 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, या जी एक्स यही डिवाइड कर लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये माइनस इसकी वजह से आएगा जो मैंने पहले लिख दिया। अब अगर यहाँ पर मैं करूँ तो क्या बचेगा, सिंप्लीफाई करके, ये सिंप्लीफाई करके शायद 1 बाई एक्स बचा, तो log 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसको एक्सपेंड कर लीजिए चाहो तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू 3 एंड सो ऑन -1 बाई एक्स, और ये हो गया कैंसिल, माइनस आ गया बाहर, तो ये आपका 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x क्यूब, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये निगेटिव क्वांटिटी है। तो जी डैश एक्स हमारा है निगेटिव, जी डैश एक्स हमारा निगेटिव है और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब हमें पता करना बहुत डिफिकल्ट काम हमारे लिए नहीं है। ए ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन को डेरिवेटिव देखिए, ए ऑप्शन का क्या आएगा, एफ डैश एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव था ना,
तो ये कुछ नंबर ही आएगा कैलकुलेट होकर के, कुछ कैलकुलेट होकर नंबर आएगा, तो एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव हो गया हमारा, और एफ ये पॉजिटिव है, और ये हमारा निगेटिव निगेटिव है ना, बीरे से हाँ, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ सारा, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है, करेक्ट नहीं है ये। इसकी बात करें तो जी की, इसको डिफ्रेंशिएट करो बी को, ये आएगा जी डैश समथिंग इंटू एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। देखिए ये तो निगेटिव आएगा, निगेटिव आया, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है निगेटिव, और एक निगेटिव बाहर लगा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो गया, तो डिक्रीजिंग है। और यहाँ की इसकी बात करूँ तो जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ये कैसा है, ये तो पॉजिटिव था, ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो गया, ये भी करेक्ट है। इसकी बात करूँ तो ये आएगा जी डैश एफ एक्स एफ डैश एक्स। अब जो एफ डैश एक्स है वो हमारा पॉजिटिव, और ये हमारा निगेटिव, ये भी निगेटिव हो गया, तो ये भी डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से करेंगे। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन R2R F0 0 है, F डैश 1 है। हाँ ये तो आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा, बस इसको आप क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 0 पर 0 है, और इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है, थोड़ा सा भी ऐसे इधर गया होगा तो जरूर ये कुछ एक्स पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव हो गया होगा, कुछ पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव हो गया होगा, तो ए करेक्ट है। अच्छा इंक्रीजिंग तो है ही 0 के दोनों साइड में, तो कुछ भी निगेटिव और क्यू पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा। देयर एग्जिस्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन जी आर टू आर सच दैट जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। भाई अगर मैं किसी, ये आपका एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसी को 2 बार इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 बार इंटीग्रेट करके उसे जी एक्स बोल दीजिए, और फिर 2 बार डिफरेंशिएट करके जी डबल डैश एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि हाँ जी डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है और वो डिफरेंशिएबल भी है, तो सी भी करेक्ट हो गया। एफ डैश एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं, अगर मैं एफ एक्स को सोचो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इस तरह का फंक्शन है, हमको पता है कि ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल तो है ये, लेकिन इसका एफ डैश एक्स कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, तो ये तो गलत है, तो इसके एबीसी ऑप्शन करेक्ट होंगे। सो गाइस आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मैं 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो भेज दूंगा, इसको शेयर करो और अपने दोस्तों के पास भेजो, इसको लाइक करो, ठीक है, ओके बाय।